हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चर्चा करेंगे कॉन्करेंट फोर्सेज, कनेक्टेड बॉडी मोशन। ठीक है, तो हम देखें सबसे पहले कॉन्करेंट फोर्सेज। Concurrent forces. What is the concurrent forces? The forces which the line of action intersect at a common point. The forces, suppose that this is a force and this is another force and this is another. Suppose that this is F1, this is F2 and this is F3. The line of action of all these forces intersect at the common point O. Clear? Then the forces are called concurrent forces. The forces whose line of action intersect at the common points is called concurrent forces. The forces whose line of action intersect at a common point are called concurrent forces. इसे हम क्या कहते हैं? concurrent forces. Here F1, F2, F3 are called the concurrent forces because the line of action intersect at common point O. ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि ये तीनों, ठीक है, इसको हम कहते हैं concurrent forces. If a body, now we talk on the equilibrium. Equilibrium. If there is no change in the state of the rest or a state of motion along a straight line, even the number of forces are acting on it, then the body is said to be in equilibrium. If there is no change in the state of rest or the state of motion along a straight line of a body, even a number of forces acting on it, then the body is said to be in equilibrium. यदि if there is no change in a state of rest or the state of motion along a straight line, even a body, even a number of forces acting on it, then the body is said to be in equilibrium.
तो हम इस स्थिति को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। इन दिस केस द वेक्टर sum of the all forces, the vector, suppose that F1, F2, F3, the vector sum of all the forces acting on a body is equal to 0. That means the vector sum of all forces acts on a body be equal to, यानी जितनी फोर्सेज काम करती हैं किसी बॉडी पर और उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि वह बॉडी इक्विलिब्रियम में है। और यह तभी संभव है जब वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्ट ऑन द बॉडी बी इक्वल टू, यह तभी संभव है, ये कंडीशन है फॉर द इक्विलिब्रियम। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी हो सकता है जब उस पर वर्क करने वाले ऑल द फोर्सेज का वेक्टर सम 0 हो जाए, तब हम कहते हैं बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। यदि हम कंपोनेंट फॉर्म में यानी समेशन ऑफ वेक्टर इक्वल टू 0, इसी तरह कंपोनेंट फॉर्म में हम जाएं तो वेक्टर fx बराबर 0, समेशन fy इक्वल टू 0, समेशन fz इक्वल टू। कंपोनेंट फॉर्म में भी समेशन ऑफ द ईच फोर्सेज हैज द, सपोज दैट f1, f2, f3 आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, so each has the 3 component along the x, y and z direction. So the summation of the all forces along x axis, summation of the all forces along y axis and summation of the all forces along z axis equal to be कितने के बराबर होगा? 0। तो इस तरह हम देखते हैं। एक और चीज हम देखें, suppose that this is a point object at which a force F1 acts and another force F2 acts and another force F3 acts, and the body is in equilibrium. So by the law of parallelogram we can make by the law of parallelogram, this is the F3. So according to the law of parallelogram, vector F1 plus vector F2 is equal to minus vector F3. Then it becomes F1 plus F2 plus F3 is equal to 0. That means if a body is in equilibrium, then the vector sum of the all forces acting on a body is equal to be 0. Is clear? Now we talk on the another a very simple and one line Lamy theorem. Is the Lamy theorem. If the 3 concurrent forces acting on a body to keep it in equilibrium,
Listen. If three concurrent forces acts on a body to keep it in equilibrium, then the angle, then the each force is proportional to the sine of angle between two other forces. Clear? कहता है if three concurrent forces act on a body to keep it in equilibrium, then each force proportional to the sine of angle between two other forces. Between the two other forces. Suppose that this is a body on which a force F1 acts and another force F2 acts and the third force F3 acts to keep this body go into equilibrium. It clear? Suppose that the angle between the line of action of F2 and F3 is alpha, and the angle between the line of action F1 and F3 is beta, and the line of action angle between the line of action F1 and F2 is the gamma. Then according to this theorem, each force is proportional to the sine of angle between two other forces. यानी F1 proportional to the sine alpha other forces, two other forces बचा कौन सा F2 and F3. इसी तरह F2 proportional to, अब ये हम इसको ले रहे हैं तो दो अदर फोर्स है F1 एंड F3, तो साइन बीटा. इसी तरह F3 is proportional to the sine gamma. That means F1 बराबर K साइन अल्फा, F2 बराबर K साइन बीटा, and F3 बराबर K साइन गामा. It may be written as F1 by sin alpha बराबर F2 by sin बीटा बराबर F3 by sin गामा बराबर कांस्टेंट. ठीक है. So this is the लामी थ्योरम. यह जो है लामी थ्योरम. F1 by sin alpha equal to F2 by sin beta, F3 by sin gamma. मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी में राइट एज F by sin alpha is equal to F2 by sin beta is equal to F3 by sin gamma. ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम ऐसे. दिस इज द लामी थ्योरम.
Now we talk on the connected motion. Clear? Connected motion. Connected body we see here. Suppose that this is a frictionless fluid on which a rope is passage over, through which a body is connected. This is the M1 and this is the M2. Consider the two body M1 and of mass M1 and M2 which connected to a string which passes over a frictionless pulley. ये फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास कर रहा है, ठीक है। The tension in this arm is T1 and similarly the tension in this arm is also it get accelerated downward और यह भी accelerated. तो suppose that body M2 is heavier than, वहां से यानी M2 कंडीशन क्या है, M2 is greater than M1. So the M1 go down, the acceleration by which the M1 go down, by the same acceleration M1 go up. M1 जो है ऊपर की ओर जाएगा और यह जो है नीचे की ओर आएगा और दोनों में टेंशन जो होगा या नीचे की ओर, दोनों में टेंशन क्या होगा, बराबर, ठीक है। अब हम इसका जो है मास mg नीचे की ओर, इसका भी मास mg नीचे की ओर। रिजल्टेंट फोर्स on M1 acts on the M1 पर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, क्योंकि यह ऊपर की ओर जा रहा है तो टेंशन इज अप एंड द वेट ऑफ द बॉडी इज डाउनवर्ड. सो फॉर मास M1 के लिए क्या होगा रिजल्टेंट फोर्स, F1 इज इक्वल टू T1 माइनस M1. क्या है M1, तो रिजल्टेंट फोर्स इस पर कितना लगा, ऊपर की ओर T1 माइनस F1 बराबर T1 माइनस M1, और T2 पर कितना लगा, और मास M2 पर, तो F2 इज इक्वल टू mg M2g माइनस T1, और यह किस में लग रहा है, नीचे की, ठीक है। तो न्यूटन के लॉ से F1 बराबर क्या होगा, M1a. सो वी मे राइट द फर्स्ट इक्वेशन एज M1a इज इक्वल टू T1 माइनस M1g. And similarly, Newton's law से
F2 यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और F2 बराबर M2A, तब क्या हो गया इक्वेशन यह M2A इक्वल टू M2G माइनस T, यह इक्वेशन। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या आ गया, M1A प्लस M2A इक्वल टू T1 माइनस M1G प्लस M2G माइनस T, ये कैंसिल हो गया, और ये कॉमन ले लें, तो M1 प्लस M2 इक्वल टू M2G कॉमन ले लें, तो M2 माइनस M1 इंटू G, तो इसलिए ये इक्वल टू M2 माइनस M1 बटा M1 प्लस M2 इंटू G, ठीक है। इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं acceleration produced in the, now we have to find out the tension। अब यदि हमें टेंशन मालूम करना हो तो हम टेंशन कैसे पता करेंगे, ठीक है। We divide the equation first by equation 2 for the tension, divide इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, तो ये क्या आ गया, M1A बटा M2A इक्वल टू T1 माइनस M1G बटा T2 माइनस M2G माइनस T2, T1, क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करें, तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो M1 बाई M2 इक्वल टू T1 माइनस M1G बटा M2G माइनस T1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें हम, ठीक है। तो क्या मिला, M1 M2G माइनस T1 M1 इक्वल टू M2 T1 माइनस M1 M2G, इसको इधर लेके चले आए, इसको इधर लेके चले जाएं, तो ये हो जाएगा M2 T1, ठीक है, प्लस T1 M1 इक्वल टू M1 M2G प्लस M1 M2G, बराबर हो गया 2M1 M2 2G, और इसमें T1 कॉमन ले लें, तो ये हो गया आपका M1 प्लस M2 बराबर 2M1 M2G, इसलिए T1 इक्वल टू 2M1 M2 बटा M1 प्लस M2 इंटू G। By this relation we can determine the tension in the string. It clear? Now we see some others typical for the connected body. A question, suppose that a block is placed on a smooth horizontal plane. Suppose that a block of mass m is placed on a frictionless horizontal
हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तब यह एक क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इजियर टू पुल दैट ब्लॉक देन द पुश। यदि कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कोई ब्लॉक ऑफ मास m रखा हुआ है, तब उसे पुल करना ज्यादा आसान है बनिस्बत उससे पुश करने के। तो आइए हम देखते हैं। दिस इज ए हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन विच ए ब्लॉक, एक इस पर ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है। इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा एंड द नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड लगेगा। ठीक है, सपोज दैट ए फोर्स ऑफ पुल है ना, F बराबर फोर्स ऑफ पुल, ठीक है ना, लग रहा है, एक फोर्स ऑफ पुल लग रहा है। which making the angle theta with horizontal and the body accelerate by, ठीक है। तो अब हम गौर से देखें, the weight of the body clearly balanced by normal reaction and the force acting diagonally, which is the force of the pull. Is clear? So this force can be resolved in two perpendicular components. हम इसे दो perpendicular component, एक vertical और एक horizontal। तो horizontal component जो होगा वह F cos थीटा होगा, vertical component होगा वह F sin। ठीक है, this horizontal component capable to pull the body which produce the acceleration in that body of mass m. So now we balance, so H यानी F cos theta इक्वल टू ma, या आपका यही है मेन जो एक्सीलरेशन पैदा करता है, और W इज द बैलेंस बाई R प्लस F साइन। अब देखें तो नॉर्मल में ऊपर की ओर दो फोर्स हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक जो है F का कंपोनेंट F साइन। तो R बराबर क्या होगा, W माइनस F साइन। यहाँ एक चीज जानने वाली चीज है, नॉर्मल रिएक्शन जितना ही कम होगा, इट इज इजी टू मूव द बॉडी ऑन द सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन जब कम होता है तो बॉडी जो है इजीली सरफेस के ऊपर मूव करती है। नॉर्मल रिएक्शन अधिक होगा तो बॉडी को मूव करने में कठिनाई होती है, इट इज डिफिकल्ट। नाउ वी टेक द अनदर केस। This is a smooth horizontal plane that is the frictionless and a body of block mass m. Now we apply a force of push. अब इस पर जो है हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, वह फोर्स क्या है, पुश का, ठीक है ना, यह पुश का फोर्स, यानी F जो अप्लाई किया गया है, F बराबर फोर्स और पुश। तो इस ब्लॉक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एंड द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग वर्टिकली।
the direction of the force making the angle theta with horizontal के साथ वह जो है थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, हम इसको ऐसे लेते हैं। यह थीटा कोण बना रहा है। So we have to resolve this force into two component। एक तो हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक हो गया वर्टिकल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया F cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया F sin। अब हम बैलेंस करें। इट प्रोड्यूस द एक्सीलरेशन। तो F cos थीटा इक्वल टू ma, यह पहला हो गया। नाउ बैलेंस द बॉडी। अब देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की ओर यानी R इक्वल टू W प्लस F साइन। नाउ वी कंपेयर इन बोथ केसेस। हियर R इक्वल टू W माइनस F साइन थीटा, हियर R इक्वल टू W प्लस F साइन थीटा। इट इज क्लियरली, हम यहाँ R डैश दे दें। It is clearly R is less than R dash. It is clear R is less than R dash. सिचुएशन कैसे बदला? एक में फोर्स ऑफ पुल लगाते हैं, दूसरे में फोर्स ऑफ पुश लगाते हैं। क्लियर? फोर्स ऑफ पुश। इट इज क्लियर R is less than R dash। तो यहाँ पर हम देखें R जो है R dash से कम है। तो इसका अर्थ हुआ किसी भी बॉडी पर यदि फोर्स ऑफ पुल लगाते हैं तो इजी है टू मूव इट देन दी पुशिंग। किसी वस्तु को, किसी भी ब्लॉक को पुश करने के बजाय यदि उससे पुल करते हैं तो वह इजीली है ना मूव करता है उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। अब हम एक दूसरी चीज देखते हैं जिसमें we have to make the free body diagram। Two block in contact। मान लिया कि दो ब्लॉक कांटेक्ट, या जो है एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस पर एक ब्लॉक ये है और एक दूसरा ब्लॉक, दो ब्लॉक है। ठीक है, इसका मास m1 है, इसका मास, इस पर एक फोर्स F लग रहा है। तो जब ये जो कांटेक्ट फोर्स सरफेस है, जो कांटेक्ट सरफेस है, इस सरफेस पर एक रिएक्शन फोर्स इधर लगेगा F और एक रिएक्शन फोर्स इधर लगेगा। क्लियर? दोनों ओर देखें तो यह जो है फोर्स लगेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको फ्री बॉडी डायग्राम हम एक एक करके देते हैं। अब देखिए, अब ये हो गया बिग ब्लॉक M1। अब फ्री डायग्राम में हम देखें, अब एक एक ब्लॉक को हम, तो इस पर कांटेक्ट फोर्स, जो कांटेक्ट सरफेस का है, रिएक्शन फोर्स F लग रहा है और ये फोर्स, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या लग रहा है, विच एक्सिलरेटेड, जिसके कारण वो ये क्या हो रहा है, एक्सिलरेट हो रहा है। तो नेट फोर्स क्या हो गया, F माइनस F इक्वल टू M1। ठीक है, अब हम दूसरा बॉडी देखते हैं। तो इस पर देखें, जो इस डायरेक्शन में लग रहा है F या M2 है, तब F बराबर
M2 F बराबर क्या हो गया M2। तब हम यहाँ लिख सकते हैं F की जगह पे यहाँ पर, ठीक है, M2A। तो F बराबर हो गया F बराबर माइनस M2A बराबर M1A और F इक्वल टू M1A प्लस M2A बराबर, ये कॉमन ले लें तो M1 प्लस M2 है ना, इसलिए A बराबर F बाई M1 प्लस, ये हो गया हमारा। अब हम यदि हमको ये निकालना हो F, तब F बराबर क्या हो गया M2A की वैल्यू क्या है M2F बाई M1 प्लस, ये है फ्री बॉडी। इस तरह यदि तीन बॉडी कनेक्टेड में हो, यदि मान लीजिए कि तीन बॉडी कनेक्शन में है, अब इसी को हम अब थ्री बॉडी में लेके चलते हैं। अब ये थ्री बॉडी है, यह जो है M3, ठीक है। अब इस पर एक इधर की ओर लगेगा F डैश, इसके कांटेक्ट पर रिएक्शन फोर्स इस बॉडी का, और इधर लगेगा, ठीक है। अब क्या है, तीन बॉडी कांटेक्ट में, तो प्रत्येक के लिए, चूंकि अब देखें M3 पर सिर्फ एक कांटेक्ट फोर्स F डैश लग रहा है, तो फॉर M3, ठीक है, तो ये आपका ब्लॉक हो गया। M3 क्या हो गया M3, तो इस पर सिर्फ एक F डैश फोर्स लगता है, नो कांटेक्ट फोर्स, तो इसलिए F डैश इक्वल टू M3, ये एक्सेलरेट हो रही है, यह फर्स्ट हो गया। अब फॉर M2 हम लेते हैं, एक एक करके देखते हैं। M2 क्या हो गया M2, तो देखें इस पर कांटेक्ट फोर्स इधर से लग रहा है F, और इसका कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हुआ F माइनस F डैश इक्वल टू M2A, यह हो गया। अब देखें फॉर M1, तो अब देखें इस पर, ये जो है ब्लॉक है, ये है M1, तो इस पर फोर्स लग रहा है F, और कांटेक्ट फोर्स इधर से लग रहा है F, ठीक है। तब नेट फोर्स कितना हुआ F माइनस F इक्वल टू M1, ठीक है। अब इस तरह देखें तो तीनों का हम बॉडी डायग्राम हमने कर दिया। अब यदि हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को जोड़ दें, है ना, एड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो देखिए F डैश प्लस F माइनस F डैश प्लस F माइनस F इक्वल टू M3A प्लस M2A प्लस M1, तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या F इक्वल टू, ये कॉमन ले लें, तो M1 प्लस M2 प्लस M3, तो इसलिए A इक्वल टू F बाई M1 plus M2 plus M3. This is the common acceleration of the body. Clear? तो इस तरह हम थ्री बॉडी डायग्राम। अब कांटेक्ट रिएक्शन फोर्स कितना है वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। थर्ड बॉडी का कांटेक्ट फोर्स कितना लग रहा है
M3 है, ए की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो M3 या क्या हो जाएगा, ए की जगह पे M3F बटा M1। उसी तरह इसका हम निकाल लें, F का कॉन्टेक्ट वैल्यू इसी तरह आएगा, F का वैल्यू हम निकाल लें। क्लियर। अब हम एक केस देखते हैं, व्हेन दे आर कनेक्टेड टू ए स्ट्रिंग, व्हेन दे आर कनेक्टेड टू ए स्ट्रिंग, जब ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो तो इसको हम कैसे करें। The blocks in contact through a string, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि जब ये एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए, हम सीधे आपको 3 बॉडी में लेके चलते हैं। मान लिया कि 3 बॉडी है, एक ब्लॉक यहाँ है या एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है दूसरे ब्लॉक से, और एक फिर यह जुड़ा हुआ है एक तीसरे ब्लॉक से, ठीक है। 3 स्ट्रिंग से जुड़े हुए, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका मास M1, इसका मास M2, इसका मास M, और इस पर एक फोर्स हम लगाते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखिए, जब इसको खींचते हैं तो इसमें स्ट्रिंग में एक टेंशन होता है, वह हुआ मान लीजिए T2, ठीक है। इसमें टेंशन जो है एक हो गया T2, ठीक है। और बॉडी को इसमें जो है टेंशन T1 बॉडी 2 के कारण, और इसमें टेंशन T, ठीक है। T1, T1, T2, ठीक है। अब हम एक एक लेते हैं। सबसे पहले हम 3 बॉडी डायग्राम लेते हैं M1। तो M1 पर सिर्फ एक टेंशन लगता है T1। दिस इज द फोर्स बाय विच, ठीक है, this is the force by which it pull and get accelerated। तो T1 बराबर हो गया आपका M1, T1 बराबर क्या हो गया M1, ठीक है। उसी तरह अब दूसरा बॉडी का, यानी कि M1 का था, अब यह M2 का। तो देखें नेट फोर्स कितना हुआ, T2 माइनस T1 इक्वल टू M2A। T1 इससे पुल कर रहा है पीछे की ओर और T2 आगे की ओर टेंशन, तो यह हो गया T2 माइनस T1, यह फर्स्ट हो गया, यह सेकंड। अब हम थर्ड का लेते हैं। यह हो गया M3, तो इस पर फोर्स F लग रहा है, ये T2 था और ये क्या है T1, और इसमें क्या लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो गया F माइनस T2 बराबर M3, ये हमारा हो गया। अब इस तरह 3 बॉडी डायग्राम बनाकर हमने इसको अरेंज कर दिया।
और पीछे जो हमने पढ़ा है तो कॉमन एक्सीलरेशन क्या होगा, a इक्वल टू एफ बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हमारा कॉमन एक्सीलरेशन जो पीछे हमने देख चुका है कि फोर्स बटा द सम ऑफ द मासेस, ये हमारा कॉमन है। अब 1 2 3 को हम जोड़ दें, है ना, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों को जोड़ दें तो T1 प्लस T2 माइनस T1 प्लस F माइनस T2 इक्वल टू M1A प्लस M2A प्लस M3A। हम देखें ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो F इक्वल टू A M1 प्लस M2 प्लस M3, तो ये बराबर F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3। ये हमारा कॉमन एक्सीलरेशन है जो पीछे हमने सीखा है कॉमन एक्सीलरेशन कैसे निकलता है, यह पीछे इसी तरह आया। अब वी कैन फाइंड आउट पुटिंग द वैल्यू ऑफ द A। अब इसमें हम A की वैल्यू रख दें तो M1 F बाई M1 M2 प्लस M3 आएगा। ये T1 क्या निकल गया, और T1 निकल गया तो हम इसमें से घटा दें तो हमारा क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, यानी M1 प्लस M2 F बटा M1 प्लस M2 प्लस F3। इसी तरह हम रखकर जो है T1 और T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। अब इस तरह हम जो है हमने देखा कुछ टिपिकल के बारे में। इन द नेक्स्ट टॉपिक्स I would like to discuss in the next session is the friction। अगले सेशन में हम जो है फ्रिक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमने जो चर्चा किया या कनेक्टेड बॉडी में वह फ्रिक्शन लेस किया। जो यहाँ पर चर्चा हुई, ये जो भी सरफेस हमने लिया, ये फ्री बॉडी डायग्राम जो हमने लिया, यह जो है सारी चीजों में फ्रिक्शन लेस लिया। एक तो हो गया द बॉडी विच आर इन कॉन्टेक्ट, जब बॉडी एक दूसरे के संपर्क में हो, और जब बॉडी कनेक्टेड थ्रू ए स्ट्रिंग, जब बॉडी जो है स्ट्रिंग के जरिए कनेक्टेड हो, तब हम फ्री डायग्राम इसको कैसे करते हैं। ये क्लियर? सो इन द नेक्स्ट सेशन I will talk about the friction. Then for the day, thanks.